Hi friends, now we come over to the fourth part of this chapter number 10, properties of fluids में fourth part section में आते हैं, that is regarding surface tension. Now surface tension is a property solely connected to liquids. Gases are not involved in this property, or this property does not apply for gases. Okay, it is purely for liquids. Now before going to the surface tension concept, let's understand few topic points. उसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं with intermolecular force. Intermolecular force. Now intermolecular force यानी क्या? There is the forces acting among the molecules. These are the forces acting among the molecules. Now ये force के बारे में बोलो तो intermolecular force are basically of two types. They are attractive in nature or they are repulsive in nature. यानी intermolecular force are of both the types, attractive as well as repulsive. तुम बोलोगे दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? तो the type of force attractive or repulsive depends on the distance between the molecules. ना अगर ध्यान से समझे तो सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इसका एक रेंज होता है इतना है. नाउ अप टू सर्टेन डिस्टेंस दिस मॉलिक्यूल इज एबल टू अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल. बियॉन्ड दैट डिस्टेंस नो फोर्स. तो चलो हम एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं लिमिटेड. यहाँ तक अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है. इफ अदर मॉलिक्यूल लाइज at a distance less than this one, then it will be attractive force. Above this one, no force above this one. Okay, beyond this. फिर यहाँ से लेके अगर डिस्टेंस कम हो दोनों के बीच में तो इट्स attractive force. Attractive force if distance less than this particular force. If distance less than this particular force, इसको RGO बोल देते हैं. तो RGO से अगर डिस्टेंस कम हुआ तो attractive force ज्यादा हुआ तो no force. एंड ये अट्रैक्टिव फोर्स भी अप टू सर्टेन डिस्टेंस ओनली. फिर इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे हुआ तो रिपल्सिव फोर्स. इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे हुआ तो रिपल्सिव फोर्स. यानी कि बहुत नजदीक आया तो रिपल्सिव फोर्स. ये बहुत नजदीक आया मतलब कैसा कि मॉलिक्यूल्स ओवरलैप हो गए. मॉलिक्यूल्स अगर ओवरलैप होते हैं तो रिपल्सिव फोर्स आ जाता है. थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रहा तो अट्रैक्टिव फोर्स, एंड बहुत ज्यादा रहा तो नो फोर्स. दिस इज द सिस्टम ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. यानी other molecule comes very near तो repulsive force, little bit more distance attractive force, and if beyond this distance no force. बराबर है. तो intermolecular force के बारे में हो गया. repulsive as well as attractive, both type of force. ना attractive force और intermolecular force में भी दो टाइप. There are two types of attractive intermolecular forces. One is called cohesive force. One is called cohesive force and other is called adhesive force. Now cohesive force यानी क्या? Forces attractive type of intermolecular force acting among same molecules, same type of molecules. Same type of molecules के बीच में लगने वाला attractive intermolecular force is called a cohesive force, and different type of molecules के बीच में लगने वाला force that's called adhesive force. तो अगर molecules same हो तो cohesive force, molecules different हो तो will be adhesive force. As for example, we have a vessel filled with water. अब वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में यानी H2O के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा that is cohesive force. ये ग्लास का वेसल लिया हुआ है तो ग्लास के बीच में लगेगा फोर्स हो cohesive force. ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स cohesive type of intermolecular force. ये H2O cohesive type of intermolecular force. But H2O and ग्लास के बीच में लगने वाला फोर्स H2 and H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स. ग्लास के मॉलिक्यूल एंड ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच में इट इज अगेन कोहेसिव फोर्स. बट ग्लास एंड H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स हो जाएगा. ओके, तो अभी हम फोकस करेंगे ऑन द कोहेसिव टाइप ऑफ फोर्सेस ओनली. तो विल बी लर्निंग अबाउट कोहेसिव टाइप ऑफ फोर्सेस. ना कोहेसिव टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में भी दो और चीजें डिफाइन कर रहे हैं. एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स, कोहेसिव टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, एंड दैट आल्सो अप टू सर्टेन डिस्टेंस इज कंसीडरेबल. बियॉन्ड दैट इज नेग्लिजिबल. द गिवन मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अट्रैक्टिव टाइप ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑन अदर मॉलिक्यूल अप टू सर्टेन डिस्टेंस. बियॉन्ड दैट डिस्टेंस इज नॉट एबल टू. अगर उससे ज्यादा डिस्टेंस हुआ तो इसका फोर्स कंसीडरेबल नहीं होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा. सो नो इफेक्ट.
ये जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ गिवन मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अदर मॉलिक्यूल, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच गिवन मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अदर मॉलिक्यूल, दैट मैक्सिमम डिस्टेंस कॉल्ड इट्स range of intermolecular force of given molecule and it is denoted by R0. Range is denoted by R0. यानी R0 is the maximum distance up to which given molecule can exert attractive type of force on the other molecule. Beyond R0 no force, less than R0 attractive force. Okay, तो ये रेंज हो गया. अब इसी बेस पर हम डिफाइन करते हैं स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन. स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन यानी ये क्या है एक्चुअली? तो taking the given molecule as center and the range and its range as the radius, we can draw a sphere around the given molecule. We can imagine a sphere around the given molecule. अब ये sphere कैसा है? इस sphere के अंदर कोई और molecule है, then the center molecule can give attractive force on that molecule. यानी कि a given molecule can exert attractive force on all the molecules lying within the sphere. Outside the sphere, this fellow cannot. तो ये हो गया sphere of molecular action of the given central molecule. Sphere of molecular action of the given molecule. ना cohesive force की बातें करें तो सारे molecules एक करके हर एक के लिए sphere defined होगा ऐसा ही. तो the molecules which are lying within this sphere can exert force on the central molecule. Those which are outside the sphere will not be able to. दोनों तरफ से बोल सकते हैं. सेंटर वाला molecule force लगा सकता है हर एक पे जो अंदर sphere में है. Outside the sphere it cannot. Other way around, all the molecules within the sphere can exert force on the central molecule and outside वाले cannot. Cohesive force की बात चल रही है, बराबर है? तो all the molecules within the sphere can exert force on the central molecule. Those which are outside the sphere will not be able to exert force on the central molecule. So that's concept of sphere of molecular action. Range आ गया, maximum distance up to which it can exert attractive force. Sphere of molecular action आ गया, यानी sphere within which it can exert attractive force, बराबर है? अब चलते हैं आगे दो और definitions which are very very close, जिनका मीनिंग अब हमें अलग दिखेगा. एक तो है surface of liquid, एक मिनट, एक तो आएगा free surface of liquid. One will be free surface of liquid and second आएगा surface of liquid. तुम बोलोगे दोनों वर्ड तो सेम है सर, फर्क खाली फ्री का ही है. तो फ्री सरफेस एंड सरफेस के बीच में क्या डिफरेंस हो समझते हैं. सपोज ये वेसल है फिल्ड विद लिक्विड, फिल्ड विद सम लिक्विड. ओके, अब द लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर, द लेयर ऑफ द लिक्विड विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एयर. एयर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन सा लेयर है? ये वाला. लेट्स से AB. AB is a layer of the liquid which is in direct contact with air and that is called free surface of the liquid. तो free surface यानी AB हो गया. The layer of the liquid in direct contact with the air is called free surface. जो uppermost layer है liquid का, जो air के साथ direct contact में है, that layer is called free surface. Okay. Then a layer of thickness R0. R0 मतलब range of intermolecular force below the free surface. Below the free surface, let's say C and D. तो ये जो लेयर हो गया ABCD below the free surface having a thickness of R0 is called surface of the liquid. ABCD becomes the surface. यानी free surface है topmost layer only and surface है a layer of thickness R0 below the free surface. Okay, that's called surface of the liquid. Surface का topmost layer, surface का जो portion air का connection में that is free surface. So free surface is a part of the surface. Free surface is a part of surface. That part of surface which is in direct contact with air is called free surface. Clear? तो ये हो गया. Now इसका एग्जांपल दूं तो दूध उबाल लिया, फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो गया, चिल्ड हो गया, तब देखते हैं तो दूध के ऊपर एक लेयर जमता है मलाई का. मलाई लेयर इज देयर. दैट इज कॉल्ड इन साइंटिफिक टर्म इट्स कॉल्ड लिपिड लेयर. बराबर है? वो लिपिड लेयर का जो टॉपमोस्ट पोर्शन जो ऊपर से अपने को दिखता है, जो थोड़ा हार्ड जैसा लगता है, बराबर है, दैट टॉपमोस्ट लेयर इज द फ्री सरफेस. एंड अगर मलाई निकालोगे तो इतनी जो थिकनेस मिलेगी, दैट थिकनेस फॉर्म्स द सरफेस. दैट थिक लिपिड लेयर फॉर्म्स द सरफेस. ओके, साइड से देखोगे तो सरफेस दिखेगा, ऊपर जो दिख रहा है वो फ्री सरफेस होगा. तो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ फ्री सरफेस, सरफेस ऑफ द लिक्विड. ना फ्री सरफेस यानी क्या? कौन सा? जो डायरेक्ट में कांटेक्ट में. इधर देखो तो एक ही फ्री सरफेस है. देयर आर केसेस, सपोज एक एयर बबल ले लो,
एयर बबल, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो उधर 2 लेयर बनेंगे फ्री सरफेस के. इट हैज 2 फ्री सरफेसेस. एयर बबल इन एयर हैज 2 फ्री सरफेस. बट अगर ये एयर बबल लिक्विड के अंदर हुआ, अगर ये एयर बबल लिक्विड में होगा तो अंदर एयर है बाहर लिक्विड है, तो ओनली 1 फ्री सरफेस. तो एयर बबल विद इन द लिक्विड हैज ओनली 1 फ्री सरफेस, व्हाइल एयर बबल इन एयर हैज 2 फ्री सरफेस. ये हो गया ना, एयर बबल है ना, होलो स्फीयर होता है ना, ये यूं हो गया, तो अंदर का भी डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में, बाहर से भी एयर के कांटेक्ट में. हाँ, इवन वन मोर थिंग, अ लिक्विड ड्रॉप ले लो, दिस इज अ लिक्विड ड्रॉप. लिक्विड ड्रॉप के बारे में क्या बोलेंगे, कितने फ्री सरफेस? ओनली 1, बिकॉज द आउटर लेयर ओनली इज इन कॉन्टेक्ट विद एयर, इनर तो वाटर लिक्विड भरा हुआ है, तो ओनली 1 फ्री सरफेस वाला केस हो गया. क्लियर? तो दिस वे यू कैन जज द नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस. गॉट इट? तो यहाँ पे हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में 2 टाइप के, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव. अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्स में भी फर्दर 2 टाइप, कोहेसिव एंड एडहेसिव. कोहेसिव मतलब एक्टिंग अमंग सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड एडहेसिव फोर्स एक्सर्टेड अमंग डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. उसके एग्जांपल यहाँ लिए थे हमने. फिर रेंज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या देखा, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच ए गिवन मॉलिक्यूल कैन एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स. फिर हमने स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन देखा, और स्फीयर विद इन व्हिच, अ स्फीयर taking central molecule as a center, a molecule as a center and its range as radius, we can imagine a sphere around the given molecule within which it can exert attractive force, considerable attractive force beyond outside which it cannot. That's called sphere of molecular action. फिर free surface and surface के बारे में लिए. Okay, चलो go through this, then we'll enter into surface tension. चलो अब चलते हैं, एंटर करते हैं टॉपिक में, सरफेस टेंशन. तो पहली बात तो इसका मीनिंग समझ लेते हैं, व्हाट इट इज. टेंशन मतलब क्या? तो टेंशन एज पर फिजिक्स इज अ रिएक्शन फोर्स. टेंशन इज अ रिएक्शन, इट्स अ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स व्हिच कम्स आउट एज अ रिएक्शन टू सम एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज पुलिंग द बॉडी. कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी को पुल कर रहा है, पर बॉडी इज नॉट केपेबल ऑफ गेटिंग पुल्ड, तो फिर बॉडी में एक रिएक्शन फोर्स राइज होता है, दैट्स कॉल्ड टेंशन. अब यहाँ पे टेंशन कहाँ पे? तो ऑन द सरफेस, यानी कि यहाँ पे सरफेस ऑफ द लिक्विड विल बी फीलिंग सम पुलिंग फोर्स, एज अ रिएक्शन. ओके, तो सरफेस टेंशन वही फोर्स है. सरफेस टेंशन इज द फोर्स, पुलिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड. अगर ध्यान से देखें, अगर याद करें तो थिन कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का सरफेस लेयर यूं होना चाहिए, पर 2 साइड से एडहेसिव फोर्स उसको पकड़ के रखा है, एंड अंदर से लिक्विड उसे पुल कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स. तो पुल कर रहा है 2 साइड से, तो पुल नहीं होगा, पर बीच में पुल हो जाएगा, तो हमको ये सरफेस दिखेगा. दिस कॉर्ड मेनिस्कस, दिस कॉर्ड सरफेस ऑफ द लिक्विड इन अ थिन ट्यूब इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. तो ऐसा कुछ कर्वेचर अपने को दिखेगा. यही बेसिक आइडिया सरफेस टेंशन का. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन व्हाट इट इज, we have to take, we'll be studying it with 4 different angles, and we'll be learning the concept of surface tension with 4 different angles. पहला लेंगे in terms of intermolecular forces, दूसरा लेंगे on the free surface what happens, तीसरा लेंगे change in potential energy के टर्म्स में, एंड चौथा लेंगे वर्क डन के टर्म्स में. 4 डिफरेंट एंगल्स हमें स्टडी करने हैं. ये चारों एंगल खत्म होंगे तो हमें कंप्लीट आइडिया आएगा सरफेस टेंशन के बारे में. नो डाउट पहले पॉइंट से आपको क्लियर तो हो ही जाएगा, पहले पार्ट से, पर फिर भी 4 पार्ट्स पूरेंगे तो विल गेट अ कंप्लीट आइडिया व्हाट सरफेस टेंशन इज एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. उसके लिए सपोज करते हैं एक वेसल है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, देयर इज अ लिक्विड फिल्ड इन द वेसल. ये हो गया फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, लेट्स से AB. AB is the free surface of the liquid. Then we take surface of the liquid with range of intermolecular force R0. So ABCD becomes the free surface of the liquid. ये free surface हो गया, shaded portion. Okay. Now what we'll do is we'll take different molecules. हम लोग अलग अलग मॉलिक्यूल लेंगे, उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इंडिकेट करेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम फ्री सरफेस से डिस्टेंस को छोटा डी बोल देंगे यहाँ पे. यानी कि क्या मतलब, क्या हो गया कि फ्री सरफेस यानी AB से उसका डिस्टेंस कहाँ पर है, इनसाइड.
एंड फिर उन पे लगने वाला रिजल्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स यहाँ नोट करेंगे। चलो सबसे पहले एक मॉलिक्यूल लेते हैं पी, लाइंग एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन r0। r0 से ज्यादा डिस्टेंस पे लाई करता हो मॉलिक्यूल, उसकी बात करें तो सरफेस से r0 डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस मतलब बिलो दिस CD। ये केस कौन सा हो गया? एनी मॉलिक्यूल बिलो CD। यानी सपोज ये मॉलिक्यूल यहाँ पे P, इसकी बात करें तो अब ये मॉलिक्यूल अगर ले इनसाइड द लिक्विड, उसके ऊपर उसका अगर स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन देखें तो पूरा का पूरा विद इन द लिक्विड होगा। दिस मॉलिक्यूल विल हैव इट्स स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन एंटायरली इनसाइड द लिक्विड, बराबर है। अब इस मॉलिक्यूल P के आसपास सारे मॉलिक्यूल सेम टाइप के लिक्विड के ये, सो दे विल बी एक्सर्टिंग इक्वल प्रेशर ऑन P, यानी P will experience an equal pressure in all direction by all the molecules, and see as density of liquid is uniform throughout, equal number of molecules on all the side equal number of molecules, so equal force acting on all the side, यानी P will experience an equal force on all the direction। तो क्या होगा? रिजल्टेंट 0। तो P पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्सेस 0, यानी P अपनी जगह से हिलेगा नहीं, P अपनी जगह से हिलेगा नहीं। All the molecules lying within the liquid below CD will experience the same thing. All the molecules lying at a distance greater than r0 यानी कि below CD will experience the same thing। अच्छा, अब that time on CD उसका क्या होगा? तो उसका भी sphere of molecular action completely inside the liquid, उसका भी sphere of molecular action completely inside the liquid, तो उसके भी रिजल्टेंट 0 हो गया। तो इधर इक्वल टू लिखो तो भी सही है, नॉट अ प्रॉब्लम। एट अ डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू r0 यानी CD या CD से बिलो के कोई भी मॉलिक्यूल के लिए रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग विल बी 0 फॉर एनी मॉलिक्यूल ऑन CD और बिलो CD विल एक्सपीरियंस अ रिजल्टेंट 0 फोर्स। ओके, तो रिजल्टेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल विल बी 0। अब चलते हैं एक मॉलिक्यूल लेते हैं, लेट्स से Q at a distance less than r0 and also greater than 0, 0 r0 के बीच में, 0 में 0 से ज्यादा मतलब सरफेस, फ्री सरफेस पे नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू 0 मींस फ्री सरफेस, तो फ्री सरफेस से नीचे अबोव CD यानी विद इन द सरफेस वाला केस हो गया। विद इन, ये केस कौन सा हो गया? विद इन द सरफेस वाला कोई भी एक मॉलिक्यूल, सपोज ये रहा Q, इसका स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन बने तो इट विल बी पार्टली आउटसाइड एंड पार्टली इनसाइड। ये स्फीयर ऑफ मॉलिक्यूलर एक्शन ऑफ Q will be partly outside, यानी इतना पोर्शन आउटसाइड रहेगा। लेट्स से JKL पोर्शन will remain outside एंड उतना ही अगर अंदर की साइड बनाए तो ये DEF पोर्शन अंदर रहेगा, बराबर है। D तो है हमारे पास में ऑलरेडी, लेट्स से EF और G, EFG पोर्शन अंदर रहेगा। क्लियर? अब हमने क्या किया, जितना JKL था उतना ही EFG का वॉल्यूम रखा हुआ है ना। Q के आसपास देखें तो 3 पार्ट हुए Q के लिए, एक JKL, दूसरा KLGE एंड तीसरा EFG ना। KLEG की बात करें तो KLEG है कंप्लीटली लिक्विड, तो इस कंप्लीटली फिल्ड विद लिक्विड जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है, इसलिए इक्वल फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। यहां से जितना फोर्स उतना इस तरफ, जितना फोर्स इस तरफ उतना इस तरफ, जितना फोर्स इस तरफ उतना इस तरफ, जितना इस तरफ उतना इस तरफ, एंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन दैट इज 0। KLEG पोर्शन के कारण Q पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 है। फिर बात करें EFG की, EFG इज अ पोर्शन कंटेनिंग लिक्विड, एज डेंसिटी मोर, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए therefore more force in downward direction, बराबर है। यानी कि यहाँ पे इसके कारण फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोर वैल्यू, ज्यादा वैल्यू लगेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर मोर। जबकि JKL रीजन की बात करें तो JKL सेम वॉल्यूम बट कंसिस्टिंग ऑफ एयर, एज एयर की डेंसिटी लेस होती है, लो होती है, therefore less number of molecules, therefore force upward direction में but less। तो यहाँ पे इस Q पे इस JKL पोर्शन के कारण कम फोर्स लगता है, EFG के कारण ज्यादा फोर्स लगता है,
तो रिजल्टेंट क्या होगा, कम और ज्यादा के बीच में, मोर फोर्स टुवर्ड्स द इनसाइड, therefore resultant force will be, therefore resultant force in downward direction. So resultant force क्या आएगा, downward direction on Q, and all the particles within ABCD यानी within the surface will experience a resultant force in downward direction. तो इनके ऊपर लगने वाला resultant force downward होगा, resultant force downward होगा. And secondly, आप जैसे जैसे CD से दूर ऊपर की तरफ जाएंगे towards AB, as you within the surface, as you will move towards the free surface, within the surface, as you will move towards the free surface, this JK and EFG imbalance will increase. ये imbalance बढ़ता जाएगा. Okay, as you move up, the imbalance will increase, and so resultant force will increase. Resultant downward force will increase. तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, more and more downward force, and चलो आ जाओ यहाँ पे exactly top पे free surface पे, let's say molecule R. उसका स्फीयर ऑफ मोलिकुलर डायरेक्शन देखो तो आधा अंदर आधा बाहर. तो फॉर अ थर्ड पार्टिकल R which is at a distance 0 and on free surface, उसके लिए हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, तो रिजल्टेंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके रिजल्टेंट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है उस मॉलिक्यूल के लिए. यानी कि इसमें तो फोर्स भी लगेगा, बाहर की तरफ तो बहुत कम फोर्स लगना है, तो इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. यानी व्हाट वी फाइंड दैट ऑल द पार्टिकल्स lying at a distance less than r0 till free surface, all of them experience a resultant force towards the inside of the liquid. Yani all the molecules within surface will experience a resultant force towards the inside. That resultant intermolecular force acting towards the inside of the liquid can be termed as surface tension. Yani कि entire surface is being pulled. हर एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ पुल हो रहा है सरफेस के अंदर का, यानी कि पूरा का पूरा सरफेस अंदर की तरफ पुल हो रहा है. Entire surface is being pulled towards the inside. Okay, यानी surface is coming under some tension which is trying to pull it inside. That is trying to pull it inside. मतलब क्या होगा? That concept, that pulling force exerted on the molecules on the surface towards the inside is called surface tension. ये पहला एंगल हो गया कि सरफेस पूरा अंदर की तरफ पुल हो रहा है, and therefore that's called that surface coming under the influence of surface tension. Okay, तो ये पहला एंगल हो गया regarding surface tension. Please go through it. Here we have taken the concept. We have taken the case of intermolecular forces acting on the molecules. Intermolecular forces को ध्यान में रख के बात की है, and this force is acting perpendicular to the surface towards the inside. Here resultant force acting perpendicular to the surface towards the inside. ये याद रखना खास. That's the key word here. A resultant intermolecular force acting perpendicularly towards the inside, which shows up as the entire surface being pulled inside, and that's a surface tension. Okay, ये पहला एंगल हो गया. Just go through this, then we move on to the next angle. So what we saw is that the molecules within the surface are experiencing a resultant inward force, and that is nothing but intermolecular force. Resultant intermolecular force towards the inside, perpendicular surface. बराबर है. अब यही टेंडेंसी है तो सारे molecules within the free surface will be attracted inside. तो ये सारे अगर अंदर आने लगे तो what will happen? The density of the liquid inside will be more as compared to that on the surface. सरफेस के कंपेरिजन में अंदर डेंसिटी ज्यादा होगी, बाहर कम होगी, ऊपर की तरफ कम होगी. यानी कि लिक्विड के अंदर देयर विल बी नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ऐसा हो जाएगा. तो लिक्विड विल हैव अ नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी, पर ऐसा नहीं होता है. लिक्विड्स हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी थ्रू आउट, दे आर नॉट नॉन यूनिफॉर्म. तो यहाँ पे डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. क्यों ऐसा? तो उसके लिए क्या होगा? सी सरफेस टेंशन, ये इंटरमोलेकुलर फोर्स जो लग रहा है रिजल्टेंट, वो उसको अंदर की तरफ पुल कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं. सो डेंसिटी में इम्बैलेंस हो रहा है. तो लिक्विड विल मेक द डेंसिटी यूनिफॉर्म बाय पुशिंग सम मॉलिक्यूल्स टुवर्ड द अपर साइड. तो लिक्विड क्या करेगा? यहाँ से मॉलिक्यूल्स को पुश करेगा एंड विल पुट इट ऑन द सरफेस. लिक्विड विल बी डूइंग वर्क टू मूव द मॉलिक्यूल्स टू द सरफेस. As liquid does work, its own energy is utilized, and that energy utilized is taken up by the molecules in uniform potential, क्योंकि उनकी हाइट बढ़ रही है. They are moving from lower end to upper end. That means they are suffering increase in height, so they will gain potential energy. So what we say is that in order to make the density uniform, the liquid pushes the molecules towards the free surface, and does some work to push them. अब वो work done by the liquid is gained by the molecules in form of potential energy. So here what we find out, molecules gain potential energy.
यानी कि सरफेस में आए हुए सारे मॉलिक्यूल्स जो टिक गए वहां पे, दे आर हैविंग पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज बिकॉज ऑफ पुशिंग डन बाय लिक्विड। तो लिक्विड ने पुश किया मॉलिक्यूल्स को, लिक्विड ने वर्क किया मॉलिक्यूल्स पे इन ऑर्डर टू ब्रिंग देम अप ऑन द सरफेस, देयरफॉर they will find that these molecules will get some potentiality. यानी कि surface of the molecule, surface of the liquid has molecules which have higher potential energy, which have some considerable potential energy. यानी कि जो molecules है surface के, they have considerable, the entire surface is considerable potential energy. That potential energy of the surface per unit area of surface is called surface tension. ये पहला definition हो गया. That potential energy of the surface per unit area of surface is called सरफेस टेंशन। ये पहला एंगल सरफेस टेंशन का। पोटेंशियल कहां से है? गेन बाय द मॉलिक्यूल व्हेन दे आर पुश्ड अप। यानी वी इमेजिन दैट एंटायर सरफेस हैज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर बीइंग पुश्ड बाय लिक्विड अप एंड thus they have considerable potentiality. That potentiality of the surface per unit area, सरफेस की जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियलिटी पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ये मॉलिक्यूल ऊपर आएगा पोटेंशियलिटी बढ़ जाएगी सरफेस की पोटेंशियलिटी बढ़ेगी तो फिर प्रॉब्लम क्या होगा सरफेस। अब देखो एक और बात ध्यान से देखें तो फ्री सरफेस पे दो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स था, पर जब लिक्विड ने एक मॉलिक्यूल को लाके ऊपर प्लेस किया यहाँ पे, तब दोनों के बीच, अब इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। प्रीवियसली द डिस्टेंस ऑफ दिस वन व्हिच हैड अट्रैक्टेड अ फोर्स, अब डिस्टेंस रिड्यूस टू दिस वैल्यू, अब डिस्टेंस कम होगा तो रिपल्सिव फोर्स डिस्टेंस में आएगा। तो ऐसे केस में when the liquid positions another molecule from the bottom on the surface between two molecules, तो सिचुएशन क्या होगा? they will move apart, तो ये सारे यूं दूर हो जाएंगे। क्यों? रिपल्सिव फोर्स के कारण। and so we find that the surface area increases, the surface area increases. clear? पोटेंशियलिटी बढ़ गई, सरफेस एरिया बढ़ेगा ना। पोटेंशियलिटी बढ़ी तो क्या होगा? पोटेंशियलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? स्टेबिलिटी कम होगी, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, बराबर है। मोर द पोटेंशियलिटी लेस द स्टेबिलिटी, सो लिक्विड इन ऑर्डर टू गेन ग्रेटर स्टेबिलिटी इट ट्राई टू रिड्यूस द सरफेस एरिया, सॉरी इट ट्राई टू रिड्यूस द पोटेंशियलिटी, सो इट नॉट अलाउ द एरिया ऑफ सरफेस टू इंक्रीज, नहीं तो पोटेंशियलिटी बढ़ रहा है साथ साथ में। इसे क्या करता है? रादर देन पुटिंग अ मॉलिक्यूल हियर, इट पुशेस द मॉलिक्यूल अबव द गिवन मॉलिक्यूल, यानी कि ऊपर एक और लेयर क्रिएट होना चालू होता है। सो जब भी यहाँ से मॉलिक्यूल को पुश करते हैं तो पुश होकर ऊपर लेयर, दे क्रिएट न्यू लेयर रादर देन गेटिंग एडजस्टेड विद द मॉलिक्यूल्स। क्यों? गेटिंग एडजस्टेड, सो सरफेस एरिया इंक्रीजेस, therefore what happens is a new layer is created। अगर कोई लिक्विड बॉयल हो रहा है, चाय देखो, चाय या फिर दूध का आपने देखा होगा उबलते हुए, तो when it is boiling the molecules are pushed up and then they settle on the surface, so they create a new surface, उछल के यूं फिर आते हैं सरफेस पे and they create a new free surface। that sort of thing is observed here। so we find that surface area does not increase but a new layer of surface is created due to this phenomenon। अब यही सेम चीज दूसरा एंगल हो गया पोटेंशियलिटी के बेस पर से। डेफिनेशन आ गया, पोटेंशियलिटी ऑफ द सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का पहला डेफिनेशन। इस बेस पर से इसका यूनिट क्या बनेगा? यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन एनर्जी पर यूनिट एरिया जूल पर मीटर का, ऐसा यूनिट हो गया इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला देखो तो जूल का m1 L2 T - 2 upon meter square L2, so this will be m1 L0 T - 2, that is the dimensional formula for surface tension। ये एक और एंगल हो गया सरफेस टेंशन का। अब तीसरा एंगल, हम अपने कैमरा को कब से यूं लगा के बैठे हुए हैं, वी आर लुकिंग फ्रॉम द साइड, अब घुमा के ऊपर से देखते हैं, वी लुक टू द फ्री सरफेस डायरेक्टली ऊपर फ्री सरफेस की तरफ देखते हैं, तो ऊपर से क्या देखेगा? ये वेसल एंड अंदर ये फ्री सरफेस है, वेसल की बॉर्डर और ये फ्री सरफेस। ओके, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो फ्री सरफेस है, फ्री सरफेस पे आए हुए मॉलिक्यूल, द थर्ड एंगल वी आर टेकिंग लुकिंग फ्रॉम द टॉप, फ्री सरफेस पे आए हुए मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, दिस मॉलिक्यूल विल एक्सर्ट अट्रैक्टिव फोर्स ऑन अदर एंड अदर वन विल बी ऑन द फर्स्ट वन। 1 and 2 बोलो तो नाम इनके दे दो, तो 1 exerts force on 2, 2 exerts force on 1, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो फोर्स, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो, सो नन ऑफ द मॉलिक्यूल बी मूविंग, कोई भी मॉलिक्यूल फ्री सरफेस पे मूवमेंट नहीं करेगा, भले अट्रैक्टिव फोर्स है तो भी, बट दिस अट्रैक्टिव फोर्स विल गेट मैनिफेस्टेड, देयर इफेक्ट विल गेट मैनिफेस्टेड ऑन द एजेस। एज पे मॉलिक्यूल अंदर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स फील करता है, बाहर की तरफ क्या? कुछ नहीं, बाहर कहीं नहीं कोई पुल करने वाला, हर एक मॉलिक्यूल ऑन द एज will be appearing a pulling force toward the center,
towards the inside. So we find that all the molecules on the edge are getting pulled towards the inside. Yani it appears as if the entire free surface is trying to contract. Appears as the entire free surface is trying to contract. बराबर है? यानी कि free surface is coming under the influence of some contracting force. Free surface is trying to contract, reduce its surface area. Reducing the surface area, therefore reduce the potential energy and so gain more stability. तो हर एक free surface की tendency है to reduce its surface area as much small as possible. बराबर है? ना यहाँ पे एक ने दूसरे को फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे लगाया. This force acting per unit length. This force acting per unit length is called surface tension. ये दूसरा definition हो गया. Force exerted among the molecules on the free surface per unit length is called surface tension. ये surface tension का दूसरा एंगल हो गया. सर यूनिट बदल नहीं जाएगा? हाँ बदलेगा ना, तो नहीं बदलेगा. अब आएगा न्यूटन पर मीटर. तो सेम ही था. जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर. तो एक मीटर हो गया, सेम आ गया. एंड डायमेंशन फॉर्मूला विल रिमेन द सेम. ओके, सो दैट फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ बिटवीन द अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑन द फ्री सरफेस, दैट्स कॉल्ड सरफेस टेंशन. ये तीसरा एंगल आ गया. एंड ये क्या बताता है? फ्री सरफेस टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट. द फ्री सरफेस टाइम टू कॉन्ट्रैक्ट. एंड आपने ये एग्जांपल बहुत बार देखा हुआ है. आपने ये फिनोमेनन बहुत बार देखा हुआ है. I bet on it, everyone has seen this phenomenon. बाथरूम में जब नहाते हैं, पानी जमीन पे, अपने बचपन में खेलने का ज्यादा होता है, पानी नीचे जमीन पे गिराते थे. पानी जमीन पे गिरता है, फैलता है पहले, फिर अगर देखो तो धीरे धीरे सिकुड़ना चालू होता है. ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट, इट स्टार्ट्स कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फॉर्म स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स. वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमेनन उसको ध्यान से देखो तो द सरफेस इज ट्राइंग टू रिड्यूस एज मच स्मॉल एज पॉसिबल एंड लीस्ट सरफेस एरिया इज फॉर स्फीयर. स्फीयर का सरफेस एरिया लीस्ट होता है. ये तो ऑल ट्राई टू गेट द स्फेरिकल फॉर्म. वाटर ड्रॉपलेट्स, जो वाटर पड़ा होगा नीचे स्पिल हुआ है, वो वाटर विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट एंड विल गेट अ स्फेरिकल फॉर्म. अगर प्लेटफॉर्म पे, किचन में प्लेटफॉर्म पे अगर दूध थोड़ा ढुल गया हो या घी ढुला हो या कोई भी लिक्विड ढुला हो, तो यू विल इमीडिएटली फाइंड दैट इट विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट एंड रिड्यूस टू द मिनिमम सरफेस एरिया. क्यों? सरफेस टेंडेंसी ऑफ सरफेस टू रिड्यूस इट्स सरफेस एरिया in order to reduce potential energy and thus gain greater stability. ओके, इसलिए कोई भी वाटर ड्रॉप या लिक्विड का ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल सरफेस अज्यूम करेगा. क्यों? क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेटर स्टेबिलिटी. ओके, एंड दिस इज द रीजन व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन नेचर. दैट एंटायर क्रेडिट गोज टू सरफेस टेंशन. क्लियर? ये सरफेस टेंशन का तीसरा एंगल हो गया. अच्छा, अब इधर देखे तो ये सिचुएशन, इधर देखे तो वेसल का एज क्या है, वो सारे मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग टू रिड्यूस सरफेस एरिया, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग पुल्ड इन, पर वेसल दूसरा छोड़ नहीं रहा है. क्यों? बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स. देयर आर एडहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ वेसल एंड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है. लिक्विड एंड वेसल के मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव फोर्स है एंड इट पुल्स. यानी कि एंटायर सरफेस ट्राइंग टू रिड्यूस इटसेल्फ बट इट इज बीन हेल्ड बाय द फ्री सरफेस. ये सरफेस डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा है पर पकड़ा हुआ है वेसल ने, तो डज नॉट कम डाउन. सरफेस टाइम टू रिड्यूस, सरफेस एरिया इज टाइम टू रिड्यूस बट द वेसल होल्ड इट. तो ऐसा लगेगा जैसे इलास्टिकली खींच के रखा हुआ है. सो दिस सरफेस नाउ बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. इट बिहेव्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. क्यों? उसको रिड्यूस करना है पर रिड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि सरफेस वेसल ने पकड़ के रखा हुआ है. यानी अ सरफेस टाइम टू वर्क एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, जबरदस्ती स्ट्रेच करके रखा हुआ है. एंड इसी रीजन से लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आर एबल टू स्टैंड. वी फाइंड दैट इंसेक्ट्स एंड मॉलिक्यूल्स आर एबल टू stand above the free surface of the liquid because the liquid surface is working as a stretched membrane. Clear? So insects or molecules sit on the surface of water or some liquid. They are easily able to क्योंकि they are balanced by the stretching of the surface. इसी कारण से mosquitoes and insects का breeding होता है जहाँ पानी भरा हुआ होता है. आसपास में कहीं पानी थोड़ा जमा हो गया तो वहां पे मच्छर या इंसेक्ट्स हो जाते हैं. Why? Because they are able to easily stand. They lay their eggs on the free surface and thus those eggs hatch and you get new mosquitoes. The population increases. तो इसके लिए हमारा कॉर्पोरेशन क्या बोलता है? हमारे कॉर्पोरेशन सिटी कमेटी क्या बोलती है कि जहाँ पे भी आपको पानी भरा हुआ मिले, अब हम तो साइंस स्टूडेंट हैं, वी शुड नो दिस, वी शुड अंडरस्टैंड दिस एंड वी शुड डू दिस, कि जहाँ पे भी पानी भरा हो, मच्छर का ब्रीडिंग या इंसेक्ट का ब्रीडिंग होने की संभावना हो, पुट लिटिल 1 or 2 ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दोगे
तो सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा। सरफेस टेंशन रिड्यूस होगा तो स्टेट मेम्ब्रेन का काम नहीं करेगा, तो इंसेक्ट अगर ऊपर बैठे तो विल नॉट बी एबल टू स्टैंड एंड सो विल नॉट बी लेइंग एग्स, क्योंकि जब तक वो इंसेक्ट को सेफ नहीं लगेगा, वो एग्स नहीं रखेगा। तो हमने सरफेस को स्टेट मेम्ब्रेन जैसा वर्क करने नहीं दिया, क्योंकि सरफेस टेंशन रिड्यूस कर दिया हमने, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो गया। तो वी फाइंड दैट now no working as a state membrane, so insects or mosquitoes are not able to stand and they will not lay their eggs and so no further breeding। इसीलिए हमेशा नाक में भी पानी जमा मिले, एक का 2 ड्रॉप ऑयल, क्या ऑयल कोई भी हो सकता है, इट कैन बी कुकिंग ऑयल और घी और यू कैन हैव गियर ऑयल या कोई भी ऑयल, कोई भी टाइप का ऑयल डाल दो, एक का 2 ड्रॉप्स, सरफेस टेंशन विल रिड्यूस एंड सो एज पर द स्पिनिंग ड्रॉप्स डाल दो थोड़े बहुत, तो you will find that surface tension will reduce and so no further bleeding will occur। तो ये surface tension पे बेस्ड है बात है। यहाँ पे हमने 3 एंगल लिए surface tension के, एक तो based on intermolecular force, second based on potential energy concept, third based on the concept of free surface। पहले में कोई डेफिनेशन नहीं, कोई result intermolecular force है, बराबर है, एंड वो फोर्स हमेशा perpendicular surface लगता है, intermolecular force acts perpendicular surface। दूसरा हमने surface tension force लिया which acts parallel to the surface। ये पैरेलल टू सरफेस जो लग रहा है वो सरफेस टेंशन फोर्स है, ये पैरेलल टू सरफेस जो लग रहा है वो सरफेस टेंशन फोर्स है, एंड इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय F इक्वल टू T इनटू L वेयर L इज द लेंथ ऑफ द फ्री सरफेस। वो ये सरफेस टेंशन फोर्सेस हो गए। ओके क्लियर। तो ये 3 एंगल हमने लिए, चौथा एंगल अगले लेक्चर में।